Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will solve mass transfer question with concepts. If you watch this video with full concentration, then you can solve most of the question in GATE examination related to mass transfer. Then let's start it. Our first question is related to diffusion. For that, first we will understand what is the concept of the question. First we will read thoroughly the question. For diffusion in solid pore at a temperature T, if mean free path is more than pore diameter and effective diffusivity is given as, दिस टाइप का दिया हुआ है और हमें चाहिए A+B. देन सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ दोस्तों. Concept for this question, we have concept is diffusivity is proportional to R under root T. R is nothing but radius and T is temperature. So we can also write d by 2 under root T. After comparison of those equation, we will get A value is 1, B value is half. Then A plus B is 1 plus half is 3 by 2. Then our correct answer is B. Friends, first you pause the video and try to solve your own. Then after that you will see the solution. Then it is more beneficial for you. Second question है related to concepts of some theories. 4 types of theory we will read in mass transfer. First theory, in film theory, mass transfer occurs by purely molecular diffusion. This is correct. In penetration theory, each liquid element stay in contact with the gas for the same period of time. This will also correct. In surface renewal theory, each liquid element stay in contact with the gas phase for different. This will also correct. In boundary layer theory, mass transfer coefficient is proportional to DAB के पास. This is wrong. Is mass transfer coefficient is proportional to DAB divided 2 by 3. Now we will summarize the concepts and make the notes. First concept is surface renewal theory. How it is coming? DAB is proportional, K is proportional to DAB the power 2 by 3. Then let us derive that. We all know that Sherwood number is nothing but 0.664, Reynolds number के power half and Schmidt number के power 1 by 3. If you don't know, then you should remember this formula, and Sherwood is KCl by DAB. 0.664 dV rho by mu is half mu by rho DAB is 1 by 3. We have to find Kc is proportional to DAB. इस साइज गया DAB and DAB के पावर minus 1 by 3 means 1 means DAB is proportional to 1 minus 1 by 3, that 1 by 3, that is DAB is proportional to 2 by 3. Also, now it is clear. Also we will note the point of some points. In film theory, mass transfer occur by purely molecular diffusion. In penetration theory, each liquid element stay in contact with the gas for the
same period of time. Third concept is in surface renewal theory, surface renewal we already discussed. Formula we have discussed. In surface renewal theory, each liquid element stay in contact with the gas for the different amount of time. Now second question, अनदर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फॉर सॉलिड मोलर फ्लक्स इज 0, मीन्स फॉर CS के लिए अगर हम इसको A मान लें, यहाँ पे क्वेश्चन में A दिया हुआ है O2 का, अगर हम इसको B मान लें और इसको C मान लें तो NB हमारा 0 है और NT हो जाएगा हमारा Na प्लस NB प्लस NC। NB हमारा 0 है और जब A प्लस 2B, तो हमें पता होना चाहिए Na इक्वल टू 1, NB इक्वल टू 2, NC इक्वल टू -3। वी हैव टू राइट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो डिवीजन में आ जाता है। देन फॉर दिस इक्वेशन Na डिवाइडेड बाय 1/2, NC डिवाइडेड बाय -1, then NC इक्वल टू -2 Na। Then we will write NT equal to Na plus NB plus NC, then Na NB is 0 minus Na. Then correct answer is D. सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसे का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वाटर एंड फॉर्मिक एसिड फॉर्म ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। द एजेट्रोपिक कंपोजिशन एट x इक्वल टू 049, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ। For maximum boiling azeotrope y versus x, we will get the graph like this. At this point is azeotropic composition alpha AB is 1 at the rate of 0.409. Alpha AB is greater than 1, alpha AB is less than 1. Then now you can choose the answer at alpha AB equal to 1 at the rate of 0.409, means A is correct answer, and alpha AB is greater than 1 at the rate less than 0.409, means 2 is also correct, or alpha AB is less than 1 at the rate of 0. AB here 1 or 2 is represented, less than greater than 0.409, then A and B are correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा फार्मूला है HETP इक्वल टू HTU lna अपॉन 1 माइनस 1/a। पैक्ट कॉलम द हाइट ऑफ द ओवरऑल गैस फेज ट्रांसफर यूनिट इज 1.2। मीन्स HTU मतलब हाइट ऑफ ओवरऑल गैस फेज ट्रांसफर यूनिट, हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट 1.2 ln A is nothing but absorption factor
1.6 divided by 1 minus 1 by 1.6. HETP is height equivalent to theoretical plate. If you solve this, then you will get 1.5 and correct answer is B. नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब कूल्ड रिफ्लक्स ऑन रिफ्लक्स रेशियो। देखो यह हमारा कॉलम है, इसमें यह हमारा लास्ट स्टेज है, ऊपर की लास्ट स्टेज। इससे हमारा क्या हो रहा है, वेपर्स आउट हो रही है और लिक्विड जो यहाँ से कूल करके जा रहा है ना, सब कूल लिक्विड कॉलम के अंदर एंटर करेगी। लेकिन ये सब कूल लिक्विड है तो दिस हैज़ टेंडेंसी टू टेक हीट, तो ये क्या करेगा, ये सम हीट लूज करेगा और ये जो हीट वेपर्स जो हीट लूज करेगा वो हीट ये ले लेगा, और जब ये हीट लूज करेगा तो कुछ वेपर्स लिक्विड में बदल जाएगा एंड दैट एल डैश विल आल्सो कम। देन नाउ इन सब कूल्ड केस एल प्लस एल डैश इज केम ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वेपर्स। देन now reflux ratio is L plus L dash divided by D, means reflux ratio got increased. Why L dash is came? Some vapors condensed, and if vapor condensed in liquid form, and that amount of heat that rejected from vapor is absorbed by subcooled liquid. Then correct answer is 1. Here I wrote concept reflux is subcooled, then L is increases, so R equal to L by D, that means R increases. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मार्क द करेक्ट रिलेशनशिप। HOG है होता है ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट, NOG इज ओवरऑल ट्रांसफर यूनिट एंड STL इज हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन लिक्विड फेज। For solving this question, you have to remember this formula HTOG equal to HTG plus 1 by A HTL। सभी लोग ये फॉर्मूला तो याद रहता है, सभी लोग ये आंसर कर लेते हैं, लेकिन दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। हाउ इट विल गेट, वी ऑल नो दैट हाइट ऑफ द टावर इज नथिंग बट STOG, I will solve here. Height of tower equal to STOG into NTOG, means overall height of transfer unit or number of transfer unit, or we can also write based on individual gas phase, individual liquid phase, and then what we STOG equal to STG plus STL divided by A. From this we can write Z divided by NTOG. NTOG or NOG is same thing, NOG. STG means Z divided by STG NTG plus 1 by A NT, here L, STOG into NTOG, STG into NTG, STL into NTL. Then after solving you will get 1 by NTOG equal to 1 by NTG plus 1 by NTL. Then first and D option, first and last option is correct. सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए।
Which of the following statements are correct regarding the solvent selection for absorption? A good solvent should have high volatility. This is incorrect. Why? If solvent has high volatility, then it has tendency to escape. So high volatility नहीं होना चाहिए. Now you will write note, if solvent has high volatility, then it evaporates easily and it carried away by the gas and loss, और सॉल्वेंट का लॉस होगा. सेकेंड है सॉल्वेंट है सुबह हाई विस्कोसिटी. अगर हाई विस्कोसिटी होता है ना तो पंपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि विस्कस सॉल्वेंट को पंप करने के लिए स्पेशल पंप आते हैं जिसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो पंपिंग कॉस्ट विल इंक्रीज. तो ये भी गुड सॉल्वेंट का एग्जांपल नहीं है. सॉल्वेंट शुड हैव लेस करोसिव इज करेक्ट आंसर. ए सॉल्वेंट शुड बी सेलेक्टेड सच एज सॉलिबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू बी एब्जॉर्ब इन द सॉल्वेंट इज हाई. अब सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि उसमें कोई सॉलिड एब्जॉर्ब हो जाए. तो जब उसकी सॉलिबिलिटी किसी सॉल्वेंट में अच्छी होगी तो वो सॉल्वेंट एक्सीलेंट सॉल्वेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉलम हैज़ टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी. मतलब सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें ड्रॉ करना चाहिए. मैं माइंड में नहीं रखना है, हमें पेपर पर ड्रॉ कर लेना है. ए और बी और एक्स डी 0.97 है एंड बॉटम प्रोडक्ट है 0.04 और अल्फा ए बी एट द बॉटम कंडीशन 1.8 and alpha AB at the top condition is 2. इफ़ अल्फ़ा दो तरफ से दिया जाता है, अल्फ़ा एवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.8 इंटू 2 अल्फ़ा एवरेज. रीबॉयलर भी एक प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है. द मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल रिक्वायर्ड इन साइड द कॉलम टू अचीव दिस सेपरेशन. तो हमें यहाँ पे फेंस के इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. n मिनिमम प्लस 1. यहाँ पे हमने 1 ही इसलिए किया क्योंकि रीबॉयलर भी हमारा एक प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है. तो जितना प्लेट आएगा ना उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा. एल एक्स टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टी एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एक्स डब्ल्यू एल एन अल्फ़ा एवरेज. इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 10 आएगा. 9.39 आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको अप्रॉक्स 10 कर लेते हैं. फ्लडिंग वेलोसिटी. हमें फ्लडिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों. फ्लडिंग वेलोसिटी होती है अंडर रूट रो एल माइनस रो वी अपॉन रो वी. यहाँ पे रो एल है लिक्विड की डेंसिटी और वेपर की डेंसिटी. हमें पता होनी चाहिए कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है वेपर की डेंसिटी से. तो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी राइट अंडर रूट रो एल डिवाइडेड बाई रो वी. अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज चेंज इन फ्लडिंग वेलोसिटी. फ्लडिंग वेलोसिटी है तो सबसे पहले हम फ्लडिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि हम इसे नेग्लेक्ट कर दिया. इफ डेंसिटी ऑफ द वेपर इज इंक्रीज्ड बाय V2 क्या हो गया 1.2 V. V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा V1 रो एल डिवाइडेड बाई रो V माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो V इंटू 1.2
1 माइनस 1 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करना दोस्तों, इसमें से आपका एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा for an absorption in a packed bed column at 1 atmosphere and 300 kilopascal entering gas stream has a molar flow rate of 30 किलो। हमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉलम बनाना है। गैस को नीचे से एंट्री कराते हैं क्योंकि गैस की टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ जाने की, इसलिए गैस विल एंटर फ्रॉम बॉटम। ये हमारा दिया हुआ है 30 किलोमोल पर आवर। ऑन ए सॉलिड फ्री बेसिस, सॉलिड फ्री बेसिस पे है तो ये हमारा GS हो जाएगा। एंड सॉल्वेंट हैविंग, अब मैं इसको 1 मानती हूँ और इसको 2 लोकेशन मानती हूँ। LS हमारा दिया हुआ है 75 किलो मोल पर आवर। सॉल्यूशन हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू है 253.3 किलो पास्कल। सॉल्वेंट इज फ्री फ्रॉम सॉलिड इज एन इनलेट गैस स्ट्रीम। यहाँ पे 9% और 9% है इनलेट गैस स्ट्रीम में सॉलिड, तो 91% उसमें सॉल्वेंट रहेगा और 95% एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर। 95% एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे जो बचेगा Y2 वो 5% बचेगा। 5% सॉलिड जो यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमें सॉलिड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम Y1 कैलकुलेट करेंगे सॉलिड फ्री बेसिस में। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय 30 का 9%, 30 का 91%, देन वी विल गेट 9 डिवाइडेड बाय 91। 30 से 30 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अगर 9 डिवाइडेड बाय आप 91 करेंगे तो यू विल गेट 0.0989। अगर इस तरह Y2 अगर निकालते हैं तो पहले हमारा 0.0989 था, उसमें से 95% एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना बचा 0.0989 इंटू 5%। इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, ये वी विल यूज़ दिस वैल्यू ओनली। अब हम क्या करते हैं, टोटल प्रेशर हेनरी लॉ लगाते हैं, क्योंकि हमें PT इंटू Y इक्वल टू X इंटू H, Y इक्वल टू X 253.3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल है इंटू 10 के पावर 3, 2.533। Y इक्वल टू X मीन्स हमारा M की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.533। स्लोप, वी ऑल नो दैट दिस विल गिव स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A, LS अपॉन स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। LS is nothing but 75 divided by 2.533 into 25. It will get 30 is 30. This will give approx 1 value. Then now we have to calculate solvent is free from solid and solid is inlet gas stream absorption, the NTU. अगर if we are getting the value of value of A is 1, then NTU is nothing but entry minus exit, exit minus equilibrium,
If you remember like this, then you will remember for long time. N3 is nothing but y1 minus y2 exit, और y2 के इक्विलिब्रियम में कौन सा है? For y2, here you note that LS solvent is free from solid, means here x2 is 0, means mx2. Now we can write mx2. x2 is 0 means is this 0. ये वैल्यू हमने y1 निकाला था 9/91, 0.0989. This value is 0.0989 minus this value is 0.0989. कितना बचेगा? 5%. 0.0989 into 5%. If you solve this, then you will get 19. It's very simple to solve. This ये cancel हो गया, then we will get 95 divided by 5, 19. Next question. These topics are very important. इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. द सेम क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. फॉर काउंटर करेंट, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इज पॉजिटिव. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. काउंटर में अच्छा, काउंटर इज बेटर देन को करेंट. वी विल गेट मोर हीट ट्रांसफर, मोर मास ट्रांसफर. देन इसका स्लोप आपका पॉजिटिव होगा. फॉर को करेंट, slope of operating line is negative, and for absorption, operating line lie above the equilibrium line. For stripping, operating line lie below the equilibrium line. Then इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्या क्या है? मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिए हैं दोस्तों. ऑप्शंस में यही है कि कौन सा काउंटर करंट है, कौन सा को करंट. तो हम यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या क्या है वो लिख देंगे. तो हमारा पहला है एब्जॉर्प्शन है और पॉजिटिव स्लोप है. मीन्स जो फर्स्ट हुआ हमारा ये हो गया एब्जॉर्प्शन एंड काउंटर करंट. स्लोप नेगेटिव, को करंट, स्ट्रिपिंग. थर्ड वन स्लोप नेगेटिव, एब्जॉर्प्शन, को करंट, एब्जॉर्प्शन. स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मीन्स 90 डिग्री से कम. स्लोप पॉजिटिव एंड स्ट्रिपिंग. काउंटर करंट, स्ट्रिपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द इक्विलिब्रियम डेटा फॉर मिथेनॉल वाटर सिस्टम एट 1 bar. Consider the equilibrium data for methanol water. The distillate column operating at 1 bar is required to produce 92 mole% of. देखो जो भी प्रोड्यूस करना है मतलब वो हमारा डिस्टिलेट है. डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन से प्रोड्यूसन होता है ना. फीड इज सैचुरेटेड वेपर. सैचुरेटेड वेपर के लिए क्यू हमारा 0 होता है. इट इज इक्विमोलर फीड मतलब एक्सएफ हमारा 0.5 है. देन मैक्सिमम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हमें निकालना है. देखिए अगर आप इस पे लोकेट करेंगे तो दिस पॉइंट इज फीड एक्सएफ एंड फ्रॉम देयर हमारा स्लोप 0 है. मीन्स इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मीन्स ये हमारा क्यू लाइन आ गया. एंड एक्स डी 92 0.92 यहाँ पे आएगी. मतलब दिस वैल्यू इज 0.92 0.92. ये हमारा स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन आ गया इन रीचिंग ऑपरेटिंग लाइन. वी ऑल नो दैट स्लोप ऑफ इन रीचिंग ऑपरेटिंग लाइन इज L/V और R/R+1. स्लोप ऑफ इन रीच्ड ऑपरेटिंग लाइन इक्वल टू R/R+1. तो इस लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फार्मूला से हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे. y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1. (0.92 minus 0.5 0.92 minus 0.14 R/R+1. If you solve this you will get R वैल्यू. दोस्तों आप इसको सॉल्व करके R की वैल्यू हमें कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशन लेस नंबर से. डायमेंशन लेस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन. वी हैव टू नो ऑल द डायमेंशन लेस नंबर. जैसे हमें ये सारे डायमेंशन लेस नंबर की फॉर्मूला याद होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन लेस नंबर की फॉर्मूला बताती हूँ. हमारा सबसे पहला है स्टैंटन नंबर इक्वल टू शेरवुड डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट. लेविस नंबर इक्वल टू स्कीमिट बाई प्रांटल और अल्फ़ा बाई DAV. पेकलेट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट एंड JD इक्वल टू शेरवुड डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट के पावर 1/3 और स्टैंटन इंटू स्कीमिट के पावर 2/3. नाउ अभी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. स्टैंटन नंबर शेरवुड डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट मीन्स P का आंसर 6 होगा. पेकलेट नंबर रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट 1. लेविस नंबर 2 और 3 हो सकता है. और चिल्टन कॉल्बर्न फैक्टर JD शेरवुड भागा रेनॉल्ड्स इंटू स्कीमिट की पावर 1/3 और 4 और 5 हो सकता है. स्टैंटन इंटू स्कीमिट के पावर 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व कर पाए. इफ द ऑप्शन of SO2 from air SO2 mixture is carried out in a steady state using water as a solvent. ऐसा है. यहाँ से हमने एयर वाटर दिया है. एयर SO2 है और वाटर ऊपर से देंगे. The individual mass transfer coefficient for SO2 in gas phase. इंडिविजुअल है तो kg लिखेंगे. 0.5. लिक्विड फेज के लिए दिया है KL 1.5. ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन गैस फेज मीन्स K कैपिटल G इज 0.25. इस क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी यहाँ है. ओवरऑल मास ट्रांसफर रेसिस्टेंस दिया है बेस्ड ऑन लिक्विड फेज मीन्स इट इज़ 1/KL इज 1.333 मोल.
देन वी ऑल नो दैट एज्यूमिंग द फिल्म थ्योरी, हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, मतलब एम की वैल्यू निकालनी है। 1/kg इक्वल टू 1/kg प्लस m/kl 1/0.25 m/1.5. If you solve this you will get m equal to 3. Now अब हमें वेरीफाई करना है कि उससे भी वही आ रहा है क्या। m we are get 1/kl plus 1/m into kg. Here 1/kl is given, then यहाँ m dash होगा, m dash we also get 3. This means equation is इक्विलिब्रियम कर्व हो गया, क्योंकि स्लोप हमारा 3 आया, तो इक्विलिब्रियम कर्व इज गिवन बाय y इक्वल टू 3x. A gas is bubble through a pool of liquid with a velocity of 2 centimeter per second. The diameter of the bubble is 5 mm and diffusivity निकालना है। देखिए आपका वेलोसिटी दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे पेंट्रेशन थ्योरी लगेगा। पेंट्रेशन थ्योरी इक्वल टू 2/dAv/πt, और वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा d/v, देन 2/dAv/π डायमीटर इंटू v, 2 अंडर रूट, यहाँ पे इसमें डिफ्यूजिविटी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों इन क्वेश्चन। डिफ्यूजिविटी इज गिवन, डिफ्यूजिविटी इज गिवन एज 2 × 10⁻⁻5 इज गिवन इन क्वेश्चन। 2 × 10⁻⁻5 इंटू वेलोसिटी इज 2 × सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू d 5 × 10⁻⁻3. If you solve this question you will get answer. Please solve and write in comment box what you got. Next question है हमारा, a gas is flowing through a pipe with a velocity of 3 centimeter per second. The fanning friction factor is 0.006. Then for the gas mass, for this we all know that the formula is fanning friction factor divided by 2 equal to kc divided by u. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर 0.06 डिवाइडेड बाई 2 kc डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट kc इक्वल टू 10⁻⁻5। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैक्ड टावल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। A packed towel is designed to recover 99% ammonia from a gas mixture containing 10% NH3 and 90% air using pure water. सबसे पहले जब भी पैक्ड टावर का फॉर्मूला है तो हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनानी है। इसमें गैस हमारा इधर से एंटर करेगा, ये हमारा 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन। यहाँ पे देखो गैस कंटेन 10% अमोनिया, यहाँ पे 10% अमोनिया है और 90% एयर है। तो अगर हम यहाँ पे y1 निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 90 करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड फ्री बेसिस में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे x2 0 होगा क्योंकि प्योर वाटर है। द रेशियो ऑफ वाटर टू गैस, यहाँ GS, यहाँ भी GS, यहाँ LS, वाटर टू गैस फ्लो रेट इज केप्ट 30% मोर देन द मिनिमम वैल्यू।
द वैल्यू ऑफ मोल रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब NH3। तो हमें निकालना क्या है, x1 निकालना है। तो ये हमारा 1/9 ये वैल्यू आ जाएगा। y1 इज नथिंग बट 0.1111। अगर हम इस तरह y2 निकालें तो आप यहाँ पे देखिए 99% अमोनिया को रिकवर करना है मतलब बाद में जो बचेगा उसमें 1% अमोनिया ही बचना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले इतना था 0.11111 माइनस 0.111 इंटू 99%। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट 00111। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। हमारा इक्विलिब्रियम लाइन y = 5x है, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा और हमारा जो पॉइंट आया y1 और x1 the value of इस पॉइंट का 0 पॉइंट हमें y1 पता है, 0 पॉइंट y1 पता है और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.11111 इंटू 0.111 you will get 0.02222 and after that हमें ये पॉइंट हमारा मिल गया। x2 0 है और 0.000111 ये मिनिमम स्लोप का कंडीशन होता है दोस्तों। तो LS मिनिमम डिवाइड बाई GS इक्वल टू y2 माइनस y1 0.111 minus 0.00111 divided by 0.02222. Then if you solve this you will get 4.95. In given question LS divided by GS is 1.3, LS minimum into GS, then we will 1.3 into 4.95. अब हम मास बैलेंस लगाते हैं। ये हमारा है कर्व, ये हमारा y1 है, ये GS है, ये y2 है और ये हमारा GS है। ये हमारा x2 है, LS है, ये हमारा LS है और ये x1 है। If we write mass balance then we will get input equal to output LS x2 plus GS y1 equal to LS x1 plus GS y2. LS x2 minus x1, GS y2 minus y1. LS by GS, from there we will write 1.3 into 4.95 y2 minus y1 divided by
x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमें पता है, दिस ये जो वैल्यू थी y2 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू ये है, और हम यहाँ पुट कर देंगे और देखिए, और x2 की वैल्यू 0 है, और फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट x1 वैल्यू। x1 वैल्यू, if you solve this equation then you will get x1 value is 0.0171। आपको दोस्तों एक बार और इसे देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमारा दिया हुआ था कि पैक टावर देगा 99% अमोनिया को रिकवर करना है, तो हमें 10% अमोनिया और 90% एयर था, तो उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने सॉलिड फ्री बेसिस में y1 निकाला। सॉलिड फ्री बेसिस में हमने y1 निकाला और y1 हमने कैलकुलेट किया 10/90, क्योंकि हम सॉलिड फ्री बेसिस में काम कर रहे हैं। तो वी कैन y1 इज 0.111। and now in question it is given the ratio of, here it is given water to gas flow rate on solid free basis is kept at 30% more than the minimum value, then this relation we have written from this statement. After that हमने इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ की है, इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एलएस मिनिमम निकालने के लिए हम मिनिमम जब स्लोप होता है तो इस ये वाला पॉइंट जो हमारा y1 पॉइंट होता है ना, वो इक्विलिब्रियम लाइन पे लाई करता है। तो y1 इज गिवन और रिलेशनशिप इज गिवन, देन फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। आफ्टर दैट हमने y2 कैलकुलेट किया, कि 99% हमारा रिकवर हो गया, तो कितना परसेंट बचा, यहाँ से हमने y2 कैलकुलेट किया। फिर हमने LS मिनिमम बाई GS मिनिमम, फिर इस लाइन के स्लोप से हमने LS मिनिमम और GS मिनिमम निकाला। आफ्टर दैट वी हैव रिटन ऑन मास बैलेंस ऑन दिस पैक टावर एंड देन वी विल सॉल्व फॉर x1। होप है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्प्शन टावर आर ऑपरेटेड अंडर कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर, इसका करेक्ट आंसर होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सॉलिबिलिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो वाई लो टेम्परेचर, because temperature is inversely proportional to solubility, और ये हेनरी लॉ कहता है। और वाई हाई प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, for a given reflux ratio and distillate composition in case of open steam distillation, which of the following statement is correct? तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा दोस्तों। नंबर ऑफ ट्रे मोर इन स्ट्रिपिंग सेक्शन, नंबर ऑफ ट्रे सेम इन इनरिचिंग सेक्शन, क्योंकि हमारा इसमें ना एक रीबॉयलर में स्टेज की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए हमारा जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में स्टेजेज होंगे वो हमारा इनरिचिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन में स्टेजेज की ज़रूरत ज़्यादा होगी, इनरिचिंग सेक्शन में हमारा स्टेज सेम होगा। देखो इसका क्या है ना कि अभी रीबॉयलर ओपन स्टीम में रीबॉयलर नहीं लगाया है, और ओपन स्टीम में रीबॉयलर कहीं और लगाया है, उसके बाद इसने कर दिया, तो जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में स्टेजेस की ज़रूरत होगी वो ज़्यादा होगी, और इनरिचिंग सेक्शन में उतना ही स्टेजेस की ज़रूरत होगी। होप है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए
और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।